So last class I told you about valency bond theory. So in valency bond theory, we can do the bonding of all molecules wherever octet is complete, and wherever octet is not complete also. The main criteria for bonding is not completion of octet. The main criteria of bonding is overlapping of atomic orbitals, and due to partial overlapping of atomic orbitals, the intermixing of electron wave takes place, and whenever the partial overlapping occurs, the unpaired electrons get paired. Means one orbital having unpaired electron, due to overlapping, partial overlapping of another orbital of another molecule, another atom, then the unpaired electron becomes paired. So that is the concept. But later we found that in order to get equal energy and identical bond length, okay, so we should have some hybridization. So there is some new concept, that is intermixing of atomic orbitals, okay, and giving you a hybrid orbital with identical shape and equal energy, something like that. That concept was started. Now we will continue that thing. So I will discuss hybridization once again. So I will take one more molecule, that is formation of methane. Okay. So formation of CH4. So let us apply valency bond theory for formation of CH4. So suppose CH4 you are taking, CH4 is like this. The Lewis structure of CH4 is like this. So carbon is central atom, 4 hydrogens are surrounding atom. Carbon is having valency shell 4 electrons, and if it is forming 4 single bond with 4 hydrogen atoms, then there will be 4 sigma bond. So this is 1 sigma, this is another sigma, this is third sigma, this is 4 sigma. So you should remember two things when you decide the bonding applying hybridization or valency bond theory. One thing is, suppose 2 atoms are forming single bond, then they must form sigma bond. If 2 atoms are forming double bond, they must form 1 sigma 1 pi bond. If 2 atoms are forming triple bond, then it should form 1 sigma and 2 pi bond. Okay. ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई होता है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है. ओके. एंड नेक्स्ट इज एटम एक ही, कोई भी मींस बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है ना. हाँ, 2 एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हो सकता है. तो उसके बाद सेकेंड थिंग याद रखना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स at central atom must be equal to total number of sigma plus pi bonds. तो सेंट्रल एटम जितना सिग्मा पाई बॉन्ड बना रहा है, उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में क्रिएट होना है. इधर पहले से रहना है या क्रिएट होना है. So this is the rule. So you have to form equal number of unpaired electrons at central atom while forming bonds. Okay. So these two rules you can remember. These are basic thing. So CH4 कितना bond बना रहा है? How many bonds carbon is making? 4 sigma bond. 4 sigma bond means there must be 4 unpaired electrons at carbon atom. Now see electronic configuration of carbon. Let us see what is the electronic configuration of carbon. Carbon is 6 atomic number, then 1s2, 2s2, 2px,
1, 2p-Y1 and 2p-Z0. So this is the electronic configuration of carbon. So now you can see the valency shell electrons of carbon. Like this. So you have only 2 unpaired electrons. Okay. So you have only 2 unpaired electrons, but you need how many unpaired electrons? सर 4 4. तो आयनाइजेशन करवा देंगे 2s हाँ. से, फिर एक तो उठ के चल जाएगा. So in ground state carbon is not eligible to form bond. So if ground state carbon is not forming bond, in excited state it can form bond. Excited state means it will absorb some amount of energy and electron can jump from lower state to higher state, so that the paired electrons will be unpaired and it will jump to higher energy states like this. तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर लिया, तो ये हो गया. ठीक है, तो ये हो गया. तो ये होने से अभी ये सब ओवरलैपिंग नहीं होगा. ये पहले क्या करेगा, इंटरमिक्स हो जाएगा. Then S will mix with P3. So here S will mix with Px, Py and Pz. So here what will happen, 2S will mix with Px, Py plus Pz. 2S is spherical shape. Px, you can take Px here like this. Py you can take like this. Pz you can take like this. So these three will mix first of all. If these four, so these four will mix first of all. So when these four are mixing, they will mix together to form hybrid orbital. So these are orbitals taking part in hybridization, but after mixing their shape will change. After mixing they will give you hybrid orbital of this shape. But there are 4 hybridizing orbitals, 4 orbitals are participating in hybridization. So definitely after mixing they will form 4 hybrid orbitals of identical shape and equal energy. तो ये 4 hybrid orbital बनेगा ये mix होने का बाद. But these 4 hybrid orbitals are controlled by one nucleus only, isn't it? So these 4 hybrid orbital after mixing, they will be arranged in space. Space में ऐसे रहेगा in order to attain maximum stability. So they will be arranged in space in order to attain maximum stability. Okay. तो सर आपने बोला आइडेंटिकल शेप एंड सिमिलर एनर्जी. इक्वल एनर्जी. तो स्पेस में ऐसे रहेगा 3 डायमेंशनल स्पेस में जैसे उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो. ओके. तो मिनिमम रिपल्सन के लिए वो कोशिश करेगा कि एक पर्टिकुलर शेप 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बने. Or it is observed that if 4 hybrid orbitals are oriented themselves in space in order to attain minimum repulsion, that is possible if they arranged a shape of tetrahedral. तो ये अगर टेट्राहेड्रल शेप करता है तो इसमें मिनिमम रिपल्सन होगा. और ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ S Px Py Pz मतलब P3, तो sp3 से हाइब्रिडाइजेशन हुआ. तो ये sp3 से जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा तो हम लोग लिखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सर sp3 क्या, हमको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए.
P का 3 बार मिक्स हो रहा है, PX PY PZ। अगर P का 2 मिक्स होगा, PX PY sp2। अगर P का तीनों में से कोई एक मिक्स होगा, sp बोलेंगे। अच्छा सर, ये जो हाइब्रिडेशन हो रहा है S और P का 3 मिक्स हो रहा है, तो इसलिए उसका नाम हम देते हैं sp3, ताकि हमें समझ में आए कौन सा P मिक्स हो रहा है। तीनों मिक्स हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 हो रहा है, तो इसीलिए इसका सर ये नाम क्यों हो रहा है? sp3 हाइब्रिडेशन देते हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक्चुअली आइडेंटिकल एनर्जी इक्विवेलेंट शेप के लिए मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने से उनका जो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, इसीलिए ये मिक्स होगा। तो ये बॉन्ड फॉर्म करने से पहले मिक्स हो जाएगा। ये मिक्स नियरली सेम एनर्जी है। हाँ, उनका एनर्जी नियरली सेम है या इक्वल है। PX PY PZ का इक्वल है, S और 2S 2P का नियरली सेम है। तो ये मिक्स ऐसे होगा जैसे कि इक्वल एनर्जी आ जाए, सबका एनर्जी इक्वल आ जाए। जो नियरली सेम है, मिक्स होने के बाद ये चारों का हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी इक्वल हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो इसीलिए ऐसे होगा। तो ऐसे हो गया, तो ये आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा, S और P3 मिक्स होगा। S और P3 मिक्स होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो उसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, तो हमारा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। 4 क्यों बनेगा? क्योंकि 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है, तो 4 ऑर्बिटल जब मिक्स होगा तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। मीन्स नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये रूल है, ठीक है। तो अगर हम 5 ml का पेंट ऐड करेंगे, सपोज हम क्या किए, व्हाइट पेंट ले लिए और रेड पेंट ले लिए। 5 ml व्हाइट पेंट प्लस 5 ml रेड पेंट प्लस 5 ml रेड पेंट प्लस 5 ml रेड पेंट, सबको मिक्स कर दिए। टोटल कितना ml होगा? 20 ml। 20 ml हो गया। अब 20 ml मिक्स करने के बाद फिर उसको 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml का कंटेनर में उसको पोर कर दिए, कंटेनर में रख दिए। कंटेनर में रखने से उसका कलर जो होगा, रेड और व्हाइट का इंटरमीडिएट कलर आएगा, इन बिटवीन कलर आएगा रेड और व्हाइट का। तो रेड और व्हाइट का इंटरमीडिएट जो इन बिटवीन कलर आया, वो उसका 5-5-5 करके रखने से 4 ही आएगा, 4 में ही कंटेनर में रहेगा। तो टोटल 20 ml है, लेकिन उसका कलर पिंक जैसा आ गया। रेड और व्हाइट को मिक्स कर दिए, पिंक जैसा आ रहा है कलर। तो कलर चेंज हो गया, लेकिन चारों का इक्वल कलर आएगा और चारों का ml इक्वल है 5-5-5-5 और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है। तो मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और सबका आइडेंटिकल शेप होगा, एनर्जी इक्वल होगा। ओके, तो अब हो गया, इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया उसको लिख लो, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 sp3 sp3। तो सर ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये चारों को मिक्स कर दिए, तो ये चारों को मिक्स करने से ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, इसको हम लोग लिख लिए। लिखने के बाद ये किससे ओवरलैपिंग होगा? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का 1s1 है, तो हम हाइड्रोजन का ले लेते हैं, जो भी ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन अच्छा का सर ये जो sp3 ऑर्बिटल में आपने जो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे सबका स्पिन सेम होगा, मतलब सब आप एक डायरेक्शन में हाँ देखेंगे। हाँ सेम रहेगा। सर, और हम बोल रहे थे कि बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉलो करके, तो हम लोग मतलब जैसा जिसको चाहे उसके साथ ही मतलब सिग्मा बॉन्ड और फिर बाद में पाई बॉन्ड वैसे बना सकते हैं ना? हाँ, मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा होगा,
डबल रहेगा तो एक सिग्मा 2p एक पाई होगा। 2p उसमें से कोई को भी लेके ना, हम सोचिए पहला बार सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो हम तीनों में से कोई को भी लेके बना सकते हाँ हैं ना। हाँ हाँ हाँ, वो सब अभी करेंगे, इसके बाद आएगा। अभी क्या होगा, 1s का हाइड्रोजन जो जैसे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है HC के साथ, तो ये इसके साथ ओवरलैप होगा, ठीक है, ये इसके साथ ओवरलैप होगा, ये इसके साथ ओवरलैप होगा, ये इसके साथ ओवरलैप होगा, ये इसके साथ ओवरलैप होगा। तो सिग्मा 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 सिग्मा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये sp3 और s ओवरलैपिंग हो रहा है, 4 बार हो रहा है sp3s, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू sp3s ओवरलैपिंग हो गया। अब क्या है, अब सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे दिखेगा, अगर हम देख पाएंगे तो कैसे दिखेगा। तो ये sp3 कार्बन का हो गया, कार्बन का ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का आ गया। अब हाइड्रोजन इसके चारों तरफ है, हाइड्रोजन उसको ओवरलैप कर रहा। तो अब जो हाइड्रोजन हम ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, तो कैसे ओवरलैप करेगा और क्या होगा देखते हैं। इसका हाइड्रोजन आ गया इधर, एक हाइड्रोजन इधर आ गया H, और एक हाइड्रोजन इधर आ गया H, और एक हाइड्रोजन इधर आ गया H, और एक हाइड्रोजन इधर आ गया H, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आने से इसका जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे था, यहाँ पे ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन का भी ऑनपेयर्ड था, लेकिन हाइड्रोजन का ऑपोजिट स्पिन होगा, स्पिन ऑपोजिट होगा लेकिन फेज सेम होगा। तो हाइड्रोजन का जो स्पिन ऑपोजिट हुआ, इसका ऑपोजिट है, तो दोनों मिलके क्या हो गए, ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैड हो गए। ये भी दोनों मिलके क्या हो गए, ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैड हो गए। ये भी दोनों मिलके ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैड हो गए। ये भी दोनों मिलके ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैड हो गया। तो ये ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैड हो गया दोनों मिलके। तो दोनों मिलके ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब पैड हो गया, तो इसके बाद ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। और ये बॉन्ड हो गया तो हो, लेकिन इसका जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल शेप होगा। ओके, तो CH4 का टेट्राहेड्रल शेप होता है, हाँ होता है। और CH4 में CH का बॉन्ड लेंथ चारों में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हर केस में sp3s ओवरलैपिंग होता है। तो 4 केस में 4 sp3s ओवरलैपिंग होगा, तो इसीलिए चारों बॉन्ड लेंथ सेम होगा और चारों का बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग इसका जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है, इक्वल बॉन्ड एनर्जी, इक्वल बॉन्ड लेंथ को हम एक्सप्लेन कर पाए और उसका शेप भी एक्सप्लेन कर पाए। और अगर इसका बॉन्ड एंगल देखेंगे, CH और CH के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, तो ये बॉन्ड एंगल हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखे। इसका शेप तो कोई आज तक नहीं देखा, लेकिन बॉन्ड लेंथ को हम लोग एक्सपेरिमेंट से, बॉन्ड एंगल को एक्सपेरिमेंट से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ देखा गया, बॉन्ड एंगल देखा गया 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब इसको लिख सकते हैं 109.5, 0.5 मतलब 30 होता है, 1 डिग्री 30 मिनट्स होता है। तो एक हाफ डिग्री मतलब 30 मिनट्स को 28 मिनट को अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं, 109.5 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ अप्रोक्सीमेटली CH का इतना आ रहा है, चारों बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रहा, ठीक है। तो चारों बॉन्ड लेंथ जब इक्वल आ रहा, तो ये बॉन्ड एंगल इतना हो रहा है, बॉन्ड एंगल इक्वल है, बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तो बॉन्ड एंगल ये टेट्राहेड्रल शेप होने से ही इक्वल आएगा। और ये ऐसे बनाता है, ऐसे हाइब्रिडेशन करता है। तो इस कॉन्सेप्ट से इसको एक्सप्लेन किया गया। ओके, और इसको क्वाइट कन्विंसिंग लगा और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को प्रूव कर रहा है, तो ये हाइब्रिडेशन सही है, सब लोग एक्सेप्ट किए, ठीक है। तो आगे हम लोग हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मतलब हाइब्रिडेशन क्या सब मॉलिक्यूल में होता है, तो हाइब्रिडेशन कितने टाइप का होता है, कंडीशंस क्या है, हाइब्रिडेशन क्यों होगा। ओके, तो हम लोग हाइब्रिडेशन के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? सर हाँ बोलो। सर इसमें जो sp3 और s में जो बॉन्ड हुआ, तो उससे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा? नहीं, हाइब्रिडेशन तो हो गया ऑलरेडी, सेंट्रल एटम हाइब्रिडेशन करता है, उसके बाद ओवरलैप होता है।
हाइब्रिडेशन एक बार होगा। ठीक है सर, और शेप को याद रखना पड़ेगा हर एक के लिए, हर एक केस में, और मतलब कुछ निकाल नहीं सकते या सोच के वैसे कुछ? से हाँ, वो उसके लिए बहुत थ्योरी है, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। माने याद ज्यादा नहीं करना है, समझना है ज्यादा, थोड़ा बहुत याद करना है। ठीक है, हाँ सर। तो ये सब कैसे करें, तो आगे का थ्योरी में आएगा, वो सब पढ़ लेंगे हम लोग, पढ़ने से सब क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यू। अभी देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी नोट्स है, नोट्स में एक बार पढ़ लेते हैं ताकि जो मैंने बताया सब याद भी हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। ये वेस्फोर्ड थ्योरी बाद में आएगा। यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन लिनस पॉलिंग ने डिस्कवर किए थे। ओके, लिनस पॉलिंग को नोबेल प्राइज मिला था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्क करने के लिए। तो लिनस पॉलिंग बताए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। Central atoms atomic orbital combine to form a new set of equivalent orbitals known as hybrid orbitals. Unlike pure orbitals, the hybrid orbitals are used in bond formation. ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज होगा। जो सेंट्रल एटम का जितना भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, उसमें से कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल या सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट कंबाइन होगा। कंबाइन होकर न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाएगा, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो सब इक्विवेलेंट होगा, उनका आइडेंटिकल शेप होगा, एनर्जी इक्वल होगा। तो ये प्योर ऑर्बिटल जैसा नहीं है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग होने के बाद बनाता है, उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, बोलते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाता है, सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद रखो। सराउंडिंग एटम का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल में मोर देन वन सेंट्रल एटम है, जितना भी सेंट्रल एटम है सभी का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इट इज द सेंट्रल एटम दैट मेक्स हाइब्रिडाइजेशन, नॉट सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम का जो ऑर्बिटल है उसका प्योर ऑर्बिटल आराम से ओवरलैप हो सकता है, सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन को कैसे हम डिफाइन करें? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज so as to redistribute their energies, resulting the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape is called hybridization. ठीक है, तो hybridization is a process of intermixing of orbitals with energy same or nearly same, resulting formation of new orbitals known as hybrid orbital. Is that clear? So this Yes, is sir. this is known as hybridization. ठीक है, तो hybridization में कुछ साइलेंट फीचर है, सम फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या होता है, पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन और दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। मतलब हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे। मतलब क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, taking part in hybridization is equal to number of hybrid orbitals formed. ठीक है, तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा, और जितना हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल रहेगा उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? एकदम। सर एक बार और बता दीजिए।
मतलब जितना ऑर्बिटल मिक्स होगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। सही है। हाँ सर। तो नंबर 2, दी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट एनर्जी इन शेप। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ये गलत लिखा है, ये हाइब्रिड होगा। दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट एनर्जी इन शेप। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है उस सबका एनर्जी सेम होगा और शेप आइडेंटिकल होगा। The hybrid orbitals are more effective in forming stable bond than pure atomic orbital. Pure atomic orbital से hybrid orbital ज़्यादा stable होता है, तो ये stable bond बना सकता है। Okay? The hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion between them, between the electron pairs, thus a stable arrangement. Therefore, the type of hybridization indicates the geometry of the molecule. तो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में ऐसे रहेगा जैसे कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन रहे। अगर मिनिमम रिपल्सन होगा तभी मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगा। ठीक है, उनके बीच में अगर मिनिमम रिपल्सन होगा तभी मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगा। तो मिनिमम रिपल्सन ऐसे होगा जैसे कि उनके बीच में स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहा है तो टेट्राहेड्रल शेप में मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगा इसका। तो टेट्राहेड्रल शेप में 109 डिग्री 28 मिनट बनाएगा बॉन्ड एंगल, उनके बीच में एंगल इतना रहेगा। ठीक है, तो उनके बीच में इतना बॉन्ड एंगल में ये बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर? ये सब एक्सपेरिमेंटल है सर। हाँ, ये सब बाय ऑब्जर्वेशन। तो उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये याद रखो। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कभी भी सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। ओके, मतलब सिग्मा बॉन्ड मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ले रहे हैं तो उसका हेड टेल जैसे शेप होगा। प्योर ऑर्बिटल क्या होगा, वो डम्बल शेप होगा, ऊपर जितना है नीचे उतना है, इक्वल हाफ है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। लेकिन ऑन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो प्योर ऑर्बिटल है, जो प्योर है ऑन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, वो पाई बॉन्ड बना सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो ऑन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वो क्या करता है, वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का ऊपर और नीचे साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। तो ऊपर जितना ओवरलैपिंग होगा वो नीचे भी उतना ओवरलैपिंग होगा, तभी तो पाई बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, टेल कम है, तो टेल का ओवरलैपिंग नहीं हो सकता है, हेड का हो जाएगा। हेड का ओवरलैपिंग होगा तो ऐसे होगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एलोंग सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। लेकिन साइड वाइज वो नहीं कर सकता है क्योंकि आधा ऊपर आधा नीचे नहीं है। तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग में ऊपर जितना ओवरलैपिंग होगा नीचे भी उतना होगा, ये रूल है। तो उस टाइप का पी में पी का शेप जैसा है, वो उस टाइप का ओवरलैपिंग में सक्षम है। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ऊपर आधा नीचे आधा तो नहीं है, तो ये ओवरलैपिंग में ऊपर आधा नीचे आधा नहीं कर सकता है। तो इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड कभी नहीं कर सकता है। प्योर पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड कर सकता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली सिग्मा बॉन्ड कर सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो इसके बाद सर ये पीडीएफ आप भेज दीजिएगा। हाँ, इसका विथ एनोटेशन भेज देंगे। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? The orbitals present in valency shell of atom gets hybridized. Only valency shell electron hybridization में participate करेगा, inner shell electron hybridization में participate नहीं करेगा, only valency shell. The orbitals undergoing hybridization should have almost equal energy. तो जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो सबका एनर्जी नियरली सेम होगा। अगर एग्जैक्टली सेम नहीं है तो नियरली सेम होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो इंटरमिक्सिंग पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे तो स्टूडेंट्स मतलब फिर हम एस और डी ऑर्बिटल का नहीं करवा सकते ये
हाँ ओवरलैपिंग करा सकते हैं 1s4d लेकिन का 1s4d का hybridization 1:3D नहीं होगा। तो ये एनर्जी डिफरेंस अगर नियरली सेम होगा तो मिक्स होगा, नहीं तो मिक्स नहीं होगा। बहुत लार्ज डिफरेंस होगा तो मिक्स नहीं होगा। मान लो स्टूडेंट्स का फ्रेंडशिप होता है। अगर दो स्टूडेंट का जो लेवल है, माने स्कूल में जो रैंक आता है या पढ़ाई कर रहे हैं, जो आईक्यू लेवल है या परफॉर्मेंस लेवल है, तो लेवल अगर नियरली सेम होगा उनका फ्रेंडशिप ज्यादा दिन तक रहेगा। ओके, अगर दोनों फ्रेंड में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है और एक स्टूडेंट है उसका आईक्यू कम है, वो वीक स्टूडेंट है, ओके, तो उनके बीच में फ्रेंडशिप ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। अगर दो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो उनके बीच में फ्रेंडशिप बहुत दिन तक रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अगर एक एवरेज स्टूडेंट है और दूसरा एवरेज स्टूडेंट है, उनके बीच में फ्रेंडशिप ज्यादा दिन तक रहेगा, दोनों का लेवल इक्वल है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, अगर एनर्जी इक्वल है या नियरली इक्वल है तो स्टेबल बॉन्ड देगा। अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो गया तो बॉन्ड तो बन सकता है लेकिन स्टेबिलिटी कम रहेगा, वो ज्यादा दिन तक नहीं होगा। ओके, तो कुछ भी है, दो फ्रेंड के बीच में जो भी नेचर होगा, नेचर नियरली सेम होगा तो फ्रेंडशिप स्ट्रांग होगा और स्टेबल होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे energy difference should not be large. The promotion of electron is not essential condition prior to hybridization. ठीक है, देखो हाइब्रिडाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉन प्रमोशन होता है, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो ये एक्साइटेड स्टेट एसेंशियल नहीं है, ये डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इज दैट क्लियर? मतलब ये जो मैंने बताया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ पाई, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो उस कंडीशन से करना है एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। इन सम केसेस इवन फील्ड ऑर्बिटल्स और वैलेंसी शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. In some cases, vacant orbitals also take part in hybridization. Vacant orbital or field orbital or unpaired orbital और हाफ फील्ड लिख देता है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड तो अभी तक तो हम लोग कर के आ रहे थे, वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, हाफ फील्ड फुली फील्ड होगा, ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, ये हम लोग कर रहे थे। ये तो होगा ही, लेकिन कभी कभी वैकेंट ऑर्बिटल और फील्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये ध्यान में रखो। और इसका एग्जाम्पल बाद में आएगा, हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन माइंड में रखो कि ये भी हो सकता है, केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। ओके, तो जो जो चीज होगा केमिस्ट्री में वो सब ऑप्शंस माइंड में रखो। कभी कभी ऐसे भी होता है, फील्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। बहुत ही जल्दी उसका एग्जाम्पल आ जाएगा, एग्जाम्पल वाटर में होगा, वाटर एमोनिया में आएगा। इलेक्ट्रॉन्स है, इनर वाला ऑर्बिटल नहीं, इनर नहीं करेगा, ओनली वैलेंसी शेल करेगा। वैलेंसी शेल में जो पेयर्ड है वो भी कर सकता है, वैकेंट है वो भी कर सकता है, अनपेयर्ड है वो भी कर सकता है, लेकिन हमेशा करेगा ऐसे कुछ जरूरी नहीं है। ये सब डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन नेसेसिटी, हमारा मर्जी से नहीं होगा, एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। ओके, अब देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, तब पूरा 100% समझ में आएगा। 3p4 ऐसे कुछ मेरा खत्म हो गया उतना में कॉन्फ़िगरेशन, तो कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि 3d0 जिसमें है ही नहीं वो हाइब्रिडाइजेशन हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी 3D का भी वैकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन हमेशा नहीं करेगा, और हम लोग जो चाह रहे हैं उसके हिसाब से नहीं होगा, मतलब कोई एक रूल से नहीं होगा। ये देखेगा कितना बॉन्ड बना रहा है, और जो सराउंडिंग एटम है उसके पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, या उसके पास फील्ड ऑर्बिटल है, या उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके हिसाब से जो सेंट्रल एटम का फील्ड इलेक्ट्रॉन या वैकेंट इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा।
लेकिन ये माइंड में रखो कि वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है, फील्ड ऑर्बिटल भी कर सकता है, ऑन हाफ फील्ड भी कर सकता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेके समझेंगे, एक साथ सबका एग्जाम्पल नहीं आएगा, एक एक करके आएगा, देखते हैं हम लोग। तो पहले हम देखते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितने टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन है। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, जबरदस्ती दो ऑर्बिट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट होता है, मतलब नहीं सर, हम लोग जबरदस्ती करवा सकते हैं कोई भी दो ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो फिक्स्ड है, मतलब जो मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए जो मोस्ट स्टेबल वे में पॉसिबल है वो ही लेंगे। ठीक है, और वो कैसे होगा, क्यों होगा, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली खुद बना लोगे। इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है। और क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। अभी हम लोग बेसिक मेथड सीख रहे हैं, हम कॉन्सेप्चुअल मेथड सीख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा सीखने के लिए, लेकिन उसका शॉर्टकट अप्रोच भी है। कुछ टीचर क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड ही सिखाते हैं, लेकिन बेसिक मेथड सिखाता नहीं है कोई, कम ही टीचर बेसिक मेथड सिखाता है। लेकिन बेसिक मेथड लेंदी है और बेसिक मेथड डिफिकल्ट है, लेकिन बेसिक मेथड से कोई भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन कर सकते हो, इसमें ये मेथड कभी फेल नहीं होगा। लेकिन शॉर्टकट मेथड क्या है, उसका लिमिटेशंस है, कभी कभी वो फेल हो जाता है, कभी कभी वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हम लोग सब मेथड सीखेंगे। अभी देखो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कितने टाइप का होता है हाइब्रिडाइजेशन, कैसे कितने टाइप। शॉर्टकट मेथड होता है जब वो सर दो सेंट्रल एटम हो जाता है तभी सर वो कभी कभी फेल हो जाता है हाँ सर। बिल्कुल सही है, दो सेंट्रल एटम में एप्लीकेबल नहीं है। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन देखो, एक होगा एसपी टाइप, मतलब एस मिक्स होगा, कोई भी पी ले सकते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। और एक हो सकता है sp2, मतलब तीनों में से कोई दो ले सकते हैं। और एक हो सकता है sp3, तीनों ही लेंगे। और ये भी हो सकता है sp3d, ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है sp3d2, मतलब डी कोई पांच में से कोई पर्टिकुलर दो लेना है d2, या ये भी हो सकता है sp3d3। और एक होता है D3S, ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ D3S, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बता दूंगा बाद में। D3S भी एक होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सब हाइब्रिडाइजेशन टाइप्स है, कितने टाइप्स का होता है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और विथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और उसके बाद शॉर्टकट मेथड भी पढ़ेंगे। ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कैसे हम पता करें बिना मेहनत किए हुए क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। फर्स्ट और एन पे डिपेंड नहीं करेगा ना, मतलब तुझे 3s और 3p और 2s और 2p का सेम ही टाइप का स्ट्रक्चर होगा? हाँ ऑलमोस्ट सेम होगा। ओके, अच्छा, मान लो sp3d हो रहा है, 3s 3p 4d मिक्स हो रहा है, 4s 4p 4d हो रहा है, तब भी ऑलमोस्ट सेम होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहेगा, मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा, लेकिन उसका जो शेप है, शेप का नेचर और नेमिंग और जैसे दिखेगा उसमें ज्यादा अंतर नहीं होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो एक s मिक्स होगा, p कौन सा मिक्स होगा, तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, px या py या pz। तो ये दोनों को मिक्स करेंगे तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम होगा sp। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दो ऐसे रहेगा, sp sp, लेकिन ये दोनों तो एक न्यूक्लियस से कंट्रोल होगा, तो एक न्यूक्लियस में कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो एक न्यूक्लियस में ऐसे एग्जिस्ट करेगा, उसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। एक sp हो गया ऐसे, ये एक sp हो गया हेड एंड टेल, इसमें टेल नहीं दिखा है, और एक sp हो गया ऐसे, ये एक हेड है ये एक टेल है, ये sp हो गया। तो ये sp sp हो गया। अब ये तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, स्पेस में ऐसे रहेगा जैसे मिनिमम रिपल्सन हो। तो मिनिमम रिपल्सन के लिए उसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस रहना है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस दो में से ऐसे हो सकता है, दोनों का एंगल 180 होगा और उनका शेप होगा लीनियर। अगर लीनियर शेप होता है तो ये मैक्सिमम स्टेबल होगा। अगर दोनों को हम क्या कर दिए 90 डिग्री में रख दिए तो रिपल्सन मैक्सिमम होगा, इसमें रिपल्सन मिनिमम होगा, तो ये मैक्सिमम स्टेबल होगा। सर ये तो sp हम हाइब्रिडाइजेशन करवाए, हमको तो लास्ट में p
पी शेप का ही मिल गया सर, तो क्या फायदा हुआ और ये करा? नहीं पी शेप नहीं मिला, ये जो है ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आएगा एक, और एक आएगा ऐसे, और एक आएगा ऐसे। ऐसा है, तो इसका शेप और इसका डंबल में अंतर होगा, डिफरेंस होगा, ये फ्लैट होगा, ये बल्कि होगा, ओके। ये इतना नहीं होगा, ये पी का डंबल है लेकिन ये नहीं है, ऐसे है, ऐसे शेप। तो ये एसपी हो गया, तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। सर ये समझ नहीं आया, ऊपर में जैसा दिखाए थे वो तो ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा, फिर ये वो वैसा कैसे हो गया? हाँ, यहाँ पे एक हेड रहेगा, एक टेल रहेगा ना, ये दोनों है ना, ये दोनों अगर एक न्यूक्लियस में रख देंगे तो ऐसे दिखेगा। लेकिन एक ही ना पी लग रहा है, मतलब। लेकिन सर क्या जरूरी है कि उसमें एक ही एटम में दो, मतलब sp दोनों होगा? एक ही sp हाइब्रिड और ऑर्बिटल हो सकता है। एसपी तो दो बन रहा है ना, यहाँ पे एसपी तो दो बन रहा है, दो एसपी कैसे रहेगा? तो तो सर इस साइड में एक रहेगा, उस साइड में एक रहेगा, और क्या? मतलब सर हर एटम में 2 sp बनेगा? हाँ, जिसमें एसपी बन रहा है ऐसे रहेगा, एक साइड में ऐसे रहेगा और एक साइड में ऐसे रहेगा। सर दो sp क्यों बन रहा है सर? एक s एक p मिला के 2 sp कैसे बन रहा है? क्योंकि दो ऑर्बिटल कंबाइन करता है, जितना ऑर्बिटल कंबाइन करता है उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, वो मतलब रूल है एक। तो 5 ml का पेंट मिक्स करोगे 5 ml में, कितना ml बनेगा बोलो? सर टोटल 10 ml बनेगा। टोटल 10 ml बनेगा। अब इसका व्हाइट कलर है, इसका रेड कलर है, अब दोनों मिक्स कर दिए, एक हमारा एक पिंक कलर आया, ये पिंक आया, ये पिंक आया, ठीक है। तो दोनों पिंक कलर का वॉल्यूम तो 10 ही ml होगा ना, तो 10 ml उसका 5 ml कंटेनर में रखोगे तो 5 + 5 मतलब दो आएगा ना फिर, तो ऐसे करके आ रहा। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन जब होगा उसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसके लिए व्हाइट पेज में जाना पड़ेगा। तो इसका sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं। sp एग्जांपल है BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड, BeCl2। तो BeCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे मालूम? देखो, BeCl2 का लीव स्ट्रक्चर बनाओ, ये ऑक्टेट कंप्लीट करे ना करे उससे मतलब नहीं है, बना दिए। तो B दोनों साइड से क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 + 8 एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड बनाने से 7 + 1 8 हो जाएगा। लेकिन बेरिलियम का वैलेंसी शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों साइड सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, हाइपो ऑक्टेट। तो कोई बात नहीं होने से भी, लेकिन ये वैलेंसी शेल में कैसे बॉन्ड बनेगा? तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड बन रहा, तो 2 सिंगल बॉन्ड मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी ये बॉन्ड बना सकता है, नहीं तो बॉन्ड नहीं बना सकता। अभी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए बेरिलियम के लिए क्या करेंगे? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसका 1s2 2s2 ले लेते हैं, तो 1s2 इसका ऐसा है, 2s2 भी ऐसा है, तो इसका तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसका 2p लेंगे तो 2px0 2py0 2pz0, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा? ये ग्राउंड स्टेट में नहीं बना सकता है, तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्राउंड स्टेट में ऐसा स्थिति है, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 नहीं है, तो ये बॉन्ड नहीं बना सकता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बना सकता है। तो एक्साइटेड स्टेट में जब भी कोई भी रिएक्शन होता है तो उसको तो एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी मिलेगा तो ये एक्साइटेड हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो लोअर स्टेट में है वो हायर स्टेट में आ जाएगा,
तो लोअर स्टेट में से हायर स्टेट में जो आएगा वो सभी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, एज पर रिक्वायरमेंट आएगा, जितना इसको जरूरत है उतना होगा। अभी उसको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर लेगा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जंप करेगा, जंप करने के बाद ये हॉर्न्स रूल फॉलो करेगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन रहेगा। तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में आ गया, तो 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में आ गया, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, हो गया। तो इसको चाहिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए, बन गया। लेकिन ये बॉन्डिंग तभी करेगा जब ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो उसको स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो ये बॉन्डिंग बनने से पहले ये पहले मिक्स हो जाएगा, एस और पी दोनों मिक्स हो जाएंगे। एस और पी मिक्स होके क्या करेंगे, एसपी और एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। क्योंकि 2 हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल है, तो मिक्स होने के बाद 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया बेरिलियम का। तो बेरिलियम का 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद बेरिलियम किससे बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन से। अब क्लोरीन का देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। तो क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का 17 है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 और 3pz1। तो इसका 3pz एक खाली है, अनपेयर्ड है, बाकी सब पेयर्ड है, ठीक है। तो क्लोरीन का 3pz यहां पे ले लेते हैं हम लोग, 3pz ऑफ क्लोरीन, 3pz ऑफ क्लोरीन ले लिए, ऐसा है, ऐसा है। तो ये क्या करेगा, sp 3pz से ओवरलैपिंग होकर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये भी sp ओवरलैपिंग होकर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ओके। तो sp एंड 3p ओवरलैपिंग होगा, 3pz और sp ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कितना 2। तो ऐसे करके 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये उसका हो गया बॉक्स डायग्राम, ये हो गया बॉक्स डायग्राम। अच्छा सर, अभी मींस लास्ट स्लाइड में आप बोले कि वैकेंट ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है सर। तो सर यहाँ पे जो इसका 2p वाला ऑर्बिटल वैकेंट था, उसके साथ ये हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं किया? यहाँ पे Excited state में रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जो था ना OH पर रिक्वायरमेंट, वो जिस सर हमको कैसे पता चलेगा हाँ कब पता चल जरूरत जाएगा, है? दिस इज बाय प्रैक्टिस, यू विल अंडरस्टैंड। उसका शॉर्टकट मेथड है, प्रैक्टिस से पता चलेगा, ओके। ऐसे रेडीमेड रूल नहीं है सिंगल कि एटम में ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। हाँ ये कितना बॉन्ड बन रहा है उसके हिसाब से है, तो उसका कुछ कंडीशंस है, वो आएगा धीरे धीरे पढ़ोगे तो एक्सपीरियंस से पता चलेगा। और कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, ये होने से ये होगा, वो होने से होगा, वो केस टू केस वैरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट वी विल डिसाइड। तो यहाँ पे ऐसे करके हम लोग करेंगे, ओके। ठीक है सर। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कैसे दिखेगा। ये तो ऐसे दिखेगा नहीं, ये हमारा इमेजिनेशन है। एक्चुअल में बेरिलियम जो बीच में है उसका sp हाइब्रिडाइजेशन ऐसे हो रहा है, ऐसे एक हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम का इस साइड में हो गया। तो बेरिलियम क्या किया, दोनों साइड से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे किया, ठीक है, sp sp, तो दोनों साइड किया। अब क्लोरीन का 2pz, क्लोरीन का एक 2pz जो है वो एक साइड से आएगा, तो एक साइड से क्लोरीन का 2pz ऐसे आ रहा, 2pz इस साइड से आ रहा, और एक साइड से क्लोरीन का 2pz ऐसे आ रहा, 2pz ऑफ क्लोरीन, ये दोनों साइड से आ रहा। तो दोनों साइड से आके इसके साथ ओवरलैपिंग हुआ, इसके साथ ओवरलैपिंग होने से यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका पेयर्ड होगा, इसका अनपेयर्ड था पेयर्ड हो गया, इसका भी अनपेयर्ड था यहाँ पे पेयर्ड हो गया, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो ये 3pz में होगा, हाँ 3pz यस 3pz सॉरी। तो ये 3pz ओवरलैपिंग हो गया। सो 3pz ओवरलैपिंग होने से यहाँ पे जो बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड,
वो है sp और 3pz। ठीक है, तो ये ऐसे दिखेगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे रहेगा, यहाँ से ये आएगा, ये यहाँ से आएगा, तो ऐसे करके ओवरलैपिंग हो जाएंगे। ये बेरिलियम का ओवरलैपिंग होकर ऐसे आएगा, उसका ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे दिखाना है। ठीक है, 1 मिनट सर लेते हैं। सर तो क्वेश्चन कैसा पूछता है, मतलब पूछेगा अगर 4 ऑप्शन में से ऐसा ही डायग्राम दे देगा, फिर पूछेगा कौन सा सही है? हाँ, क्वेश्चन पूछेगा, इसका शेप पूछेगा, शेप क्या है, मॉलिक्यूल दे दिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा। एसपी में जो छोटे लोब्स ड्रॉ कर रहे हैं वो लेकिन पैकेज में नहीं है, तो वो क्या नहीं ड्रॉ करने से चलेगा, चलेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका शेप पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, बॉन्ड एंगल पूछेगा। अच्छा, ठीक है, तो इसका शेप है लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन BeCl2 का क्या हाइब्रिडाइजेशन दे दिया, तो sp हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया, बॉन्ड एंगल 180 लिख दिया, ये सब पूछेगा। नहीं तो क्वेश्चन आया हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर लीनियर, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, उसमें 10-15 मॉलिक्यूल दे दिया, इसमें से कौन सा कितने मॉलिक्यूल लीनियर है, तो सबका हाइब्रिडाइजेशन शेप कुछ कुछ करके, शॉर्टकट मेथड है करने के लिए। पूछेगा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो sp हाइब्रिडाइजेशन, इन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आता है करने के लिए। हम लोग लास्ट में क्वेश्चन देख लेंगे, जो जेई का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, जेई मेंस जेई एडवांस का क्वेश्चन। पहले थ्योरी सीख लेते हैं। ओके, तो sp हाइब्रिडेशन क्लियर है, नो डाउट? यस सर, क्लियर, एकदम क्लीन एंड क्लियर। तो इसके बाद sp हाइब्रिडेशन का एक डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं, ये तो इजी एग्जांपल है, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं sp हाइब्रिडेशन का। तो डिफिकल्ट एग्जांपल क्या है, सपोज फॉर्मेशन ऑफ C2H2। C2H2 जो है वो एक डिफिकल्ट एग्जांपल है sp हाइब्रिडेशन का। C2H2 कैसे फॉर्म होगा, पहले लीव स्ट्रक्चर बना लो, H C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लीव स्ट्रक्चर है। कैसे ऐसे होगा, कार्बन 4 वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन में अगर वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बना रहा, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना रहा, तो ट्रिपल सिंगल के वजह से इसका कितना होगा, 4 प्लस, यहाँ पे sp होगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, 1 + 1, 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड बना रहा, तो इसका ड्यूप्लेट है, इसका भी ड्यूप्लेट है। तो ठीक है, इसका लीव स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, कोई बात नहीं है, बढ़िया है। अब इसमें देखते हैं कितना बॉन्ड है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, वो देखते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग जानते हैं एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड बनता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन कार्बन लेफ्ट साइड में भी और एक बॉन्ड बनाया, वो सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड ही हो सकता है, डबल नहीं हो, पाई नहीं हो सकता। हाँ, तो sp होगा सर। तो ईच कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन देख रहे 2 सिग्मा बना रहा और 2 पाई बना रहा। ये कार्बन भी इस साइड में एक सिग्मा बनाएगा, इस साइड में एक सिग्मा बनाएगा, 2 सिग्मा और 2 पाई, तो एक कार्बन 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बना रहा। ठीक है, क्लियर है? तो अगर एक कार्बन 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, टोटल कितना बॉन्ड हो गया, टोटल 4 बॉन्ड हो गया, तो 4 बॉन्ड्स हो गया। तो 4 बॉन्ड्स के लिए कार्बन में हमें चाहिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन में हमें चाहिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी ये बॉन्ड बन सकता है। अभी ये कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग बना लेंगे, देखते हैं। तो अभी कार्बन का बॉन्डिंग देखते हैं। तो कार्बन का ऐसा है। तो अभी देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही है, इसका वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कार्बन का वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन लेता है,
तो कार्बन का वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इसका 2 ही वैलेंसी सेल है, तो ग्राउंड स्टेट में ये बॉन्ड नहीं बना सकता, तो हम लोग एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर लेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहां आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू होर्न्स रूल सब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम स्पिन रहेगा, तभी स्टेबिलिटी आएगा, तो ऐसे रहेगा। तो यहां से ये जंप करके 2p-Z में आ गया, तो 4 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, आ गया, बन गया। अब ये बनने के बाद फिर क्या करेगा कार्बन, कार्बन का जो भी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ओवरलैप नहीं होगा, ये क्या करेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो अब क्या हाइब्रिडाइजेशन करेगा, तो ये sp कर सकता है, sp2 कर सकता है, sp3 कर सकता है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। 2 होगा। हाँ, ये तीनों कर सकता है। तो इसमें क्या होगा वो कैसे पता चलेगा, पहले देखो एक कार्बन 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे देखो, तो अगर सब इलेक्ट्रॉन को हम हाइब्रिडाइजेशन में ले लेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है ना, पाई बॉन्ड ओनली ऑन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा, मतलब जो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो कितना पाई बॉन्ड बन रहा है, 2 बन रहा है, मतलब 2 को हटा देंगे, हाँ। 2 मतलब को हटा के जितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है उतना बस हाइब्रिडाइजेशन। बस बस ये हाइब्रिड मतलब 2 पाई बॉन्ड बन रहा है, मतलब 2 प्योर p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 2 प्योर p ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया तो पाई बॉन्ड नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बन रहा है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्योर p ऑर्बिटल को ऐसे ही रखना है, वो हाइब्रिडेशन में उसको इन्वॉल्व नहीं करना है, तो नहीं करेंगे तो एक बच गया, तो एक अगर बच गया वो सबको हम लोग हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करा देंगे, मतलब ये ऐसे हाइब्रिडेशन होगा। तो ये दोनों मिक्स हो गया sp, तो ये दोनों मिक्स हो गया तो फिर sp हाइब्रिडेशन होगा। तो sp हाइब्रिडेशन में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, एक sp यहाँ बना, एक sp यहाँ बना, तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने से उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। और ये जो बच गया py pz, तो इसको लिख देंगे py प्योर ऑर्बिटल, हमें खाली रखना है क्योंकि पाई बॉन्ड तो बनाना है ना, py pz, तो ये ऐसे बना ले, py pz हो गया। तो ये जो कार्बन का ये जैसे हाइब्रिडेशन हो रहा है, ये कार्बन का भी ऐसे ही होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल एनवायरनमेंट एंड आइडेंटिकल केसेस। तो एक कार्बन का ऐसे हो गया और एक कार्बन का भी ऐसे होगा। सर तो फिर CH4 के फॉर्मेशन के टाइम हम लोग sp3 क्यों कर रहे थे, मतलब ये कैसे समझे कि हाँ, क्या करना है? वो बेसिक मेथड में देखना है कि CH4 में तो सब सिंगल बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड नहीं हो रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड हो रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो इसीलिए उसका sp3 हाइब्रिडेशन हुआ, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन में 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। ओके, sp हाइब्रिडेशन क्यों है तो बताइए ना सर, नेटवर्क से लगा था। हाँ, ये शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड से जल्दी हो जाएगा, लेकिन बेसिक मेथड से देखो, इसका पाई बॉन्ड 2 बन रहा है, 2 पाई बॉन्ड बनेगा तो क्या करेंगे, प्योर p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है, जब प्योर p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है तो प्योर p ऑर्बिटल को खाली रखना है, उसको हम लोग हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए 2p को खाली रख दो, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड चाहिए, तो 2p को खाली रख दिए, 1p पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो सर ये हाइब्रिडेशन में इस ऑर्बिटल के साथ px या py या pz कोई भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ भी कर सकता है, तो कोई एक किया तो बाकी दोनों खाली हो गया। ठीक है, ओके सर। हाँ सर यहाँ पे सेंट्रल एटम 2 को है ना C2H2 में? दोनों ही सेंट्रल एटम, बोथ कार्बन आर सेंट्रल एटम, दोनों का तो sp हाइब्रिडेशन होगा। दोनों का sp होगा। सर इसका वो डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम बना रहे हैं अभी, पहले बॉक्स डायग्राम बना लेते हैं। तो कार्बन का हाइब्रिडेशन कर दिए, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग
हाइड्रोजन लेंगे। तो एक हाइड्रोजन इस साइड है, यहाँ पे लिख दिए, वो हाइड्रोजन का को हम एक बॉक्स बना लिए, और एक हाइड्रोजन इस साइड है, वो हाइड्रोजन लिख लिए, उसका एक बॉक्स बना लिए। हाइड्रोजन क्या है, 1s1 है, तो 1s1 ऐसे कर लो, ये हाइड्रोजन 1s1, इसको ऐसे कर लो, क्योंकि ये ऐसा है तो इसका ऑपोजिट रख देते हैं। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कि नहीं? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और जब हाँ सर। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड बना सकता है ना। तो जब हाँ सर। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो sp और s का सिग्मा बॉन्ड बनेगा इसके साथ। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो sps बना लिया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब वो दोनों sp एक सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। हो गया। लेकिन कार्बन कार्बन का भी तो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो ये दोनों मिलके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड भी हो गया। अब हमें पाई बॉन्ड बनाना है। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, py पी वाई बना लेगा और py पीजेड एक पाई बॉन्ड बनाएगा, pz एक पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हाँ अब ये कैसे बन रहा है, इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं कैसे ऑर्बिटल डायग्राम होगा। अब कार्बन का sp हाइब्रिडेशन है, sp हाइब्रिडेशन कर लेते हैं, ये हो गया sp। ये कार्बन का sp हो गया, एक sp लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे sp। लेकिन कार्बन का py pz भी तो है, तो कार्बन का py pz भी लिख लेते हैं। py को यहाँ लिख लेते हैं, py लिख दिया, और उसका pz भी है, तो pz को भी लिख लेते हैं, pz। ओके, pz को यहाँ लिख लेते हैं, z एक्सिस में लेंगे ना, pz लिख लेते हैं। तो ये कार्बन का हो गया। तो ऐसे ही और एक कार्बन का भी है तो साइड में, तो और एक कार्बन भी लिख लेते हैं, और एक कार्बन का इधर। ये भी sp है, ये भी sp है, ये और एक कार्बन। तो वो कार्बन का ये py pz भी तो है, वो कार्बन का py pz भी तो है, तो वो कार्बन का py pz भी लिख लेते हैं, py pz, py ले लेते हैं, इधर py ले लो, तो इसका pz भी ले लेते हैं, pz ले लेते हैं। ठीक है, तो pz यहाँ ले लेते हैं, z एक्सिस में pz ले लिया। लेकिन हाइड्रोजन तो लिए, हाइड्रोजन भी तो साइड में है, दो हाइड्रोजन 1s1। ठीक है, हाइड्रोजन भी ले लेते हैं दो साइड में, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं 1s1 हाइड्रोजन, तो और एक हाइड्रोजन है 1s1 ले लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो ये sp_s सिग्मा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन भी तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो sp_s सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन। और ये इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड होता है। ठीक है, पेयर्ड होता है तो पेयर कर देंगे, यहाँ पे भी पेयरिंग कर देंगे, हो गया। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। और ये कार्बन कार्बन तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, हाँ sp सिग्मा बॉन्ड बनाता है, sp ओवरलैपिंग कर दिए, इलेक्ट्रॉन को स्पिन, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, sp सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा कौन सा है, सिग्मा sp सिग्मा। लेकिन py पाई बॉन्ड बनाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग में, यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग py होगा, py साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, तो ये पाई 2py साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर का पाई 2pz भी ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये 2pz भी ओवरलैपिंग हो रहा है, ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा 2pz। तो ये 2pz ओवरलैपिंग हो गया, पाई 2pz ओवरलैपिंग होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो पाई 2pz साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो मतलब दो पाई बॉन्ड बन रहा है साइड वाइज ओवरलैपिंग में, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है साइड में, और दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल डायग्राम।
सर एग्जाम में तो क्रेयॉन्स लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो एक पेन से तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में जो स्कूल का एग्जाम होगा उसमें बोलेगा कि C2H2 का फॉर्मेशन बताओ, डायग्राम बनाओ, ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। स्कूल का एग्जाम में आएगा ये सब करने के लिए। लेकिन ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ये सब तो आर्टिस्टिकली क्रिएट करने के लिए नहीं बोलेगा। एंट्रेंस एग्जाम में बोलेगा कि इन C2H2 हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर, ओके, एंड व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। सर तब तो तो हम फिर लोग उसको ऑर्बिटल वो डायग्राम कर में तो सकते हैं। 3 सिग्मा हो गए, मतलब तो इसमें तो 2 सिग्मा और 2 पाई है। हाँ, तो हर लेकिन कार्बन 2 सिग्मा 2 पाई बनाएगा, ऐसे कर। अच्छा सर, अगर यहाँ पूछा जाए कितना बॉन्ड है तो सब लोग तो कार्बन वाला जो कार्बन की बोलेंगे या फिर इसमें हाइड्रोजन वाला भी काउंट करेंगे? तो कार्बन कार्बन का अलग सिग्मा है, कार्बन हाइड्रोजन का अलग सिग्मा है, ठीक है। तो ये तो सर मीन्स दोनों का मिला के हम लोग को बोलना पड़ेगा कितना टोटल कितना सिग्मा है, दोनों एटम का सिग्मा एक बार काउंट करना है। देखो कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड एक बार काउंट करना है, ये एक सिग्मा हो गया, इस साइड एक सिग्मा हो गया, इस साइड एक सिग्मा हो गया, टोटल 3 सिग्मा आएगा। पाई बॉन्ड इस साइड py pz, सो 2 पाई बॉन्ड, ओवरऑल इतना बॉन्ड्स है। सो देयर आर 5 बॉन्ड्स। यहाँ पे देखते हैं 5 बॉन्ड है कि नहीं। H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो टोटल 5 bonds are there. So you will say overall there will be 3 sigma bond and 2 pi bonds. यस पहले जो आपने किया था वो कार्बन एटम, मतलब 4 बॉन्ड्स आपने पहले कैलकुलेट किया था। तो एक मिनट, थोड़ा सा साउंड आ रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ सर, कैसा साउंड है? वाइब्रेशन वाला कार्बन है। हाँ हो गया। तो अभी देखो तो राइट साइड भी में sound आ आपने रहा जो है। किया है C का 2 सिग्मा और 2 पाई, वो मतलब आपने क्या किया है? तो हर एक कार्बन के लिए, हाँ मतलब वो ईच कार्बन के लिए है। हाँ बोलो क्या है। सर वो जो आपने C का 2 सिग्मा 2 पाई, वो क्या आपने हर एक कार्बन के लिए किया है? हाँ हर एक कार्बन के लिए क्या है, तो जितना सेंट्रल एटम होगा सब लेना है, यहाँ पे सभी एटम सर लेना है अभी यहाँ पे। तक वो बजिंग साउंड अभी भी आ रहा है। हाँ पता नहीं क्यों आ रहा है, मैं चेक किया कि इधर तो नहीं है, स्पार्क नहीं है इधर, मैंने ऑफ कर दिया तो वो भी तो नहीं है। वो जूम का कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं तो इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, ये दो ही हो सकता है और कुछ नहीं। तो इज दैट क्लियर। हाँ तो फॉर C2H2 फॉर्मेशन इसका शॉर्टकट मेथड है, इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा। शुरुआत में मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कर लो क्योंकि उसको पूरा समझना है कैसे क्या हो रहा, क्योंकि जेई में क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है। अगर अच्छे से नहीं कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो उसको खाली आंसर उसको कैसे शॉर्टकट में निकाल दे रहे हो, तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं होगा। पूरा परफेक्टली समझना है और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जब तक नहीं समझ रहे हो पढ़ते रहो और क्वेश्चन पूछते रहो, ढूंढते रहो, ठीक है। तो 2 साल का जो प्रिपरेशन है, तो प्रिपरेशन मस्ट बी क्रिएटिव एंड यू शुड कल्टिवेट नॉलेज, एंड द नॉलेज शुड नॉट बी बोरोड। शॉर्टकट नॉलेज बोरोड नॉलेज होता है, मतलब कहीं से उठा लिए। तो यू हैव टू
गो टू द डेप्थ एंड डू एनालिसिस। तो ये हो गया C2H2 का फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसके बाद मैं फिर जाता हूँ नेक्स्ट बाकी का जो हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। तो sp हाइब्रिडाइजेशन इज कंप्लीट। तो नाउ वी कैन चेक अदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो sp2, उसके बाद हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एस देखो स्पेरिकल शेप है, px py ये दो लिया। तो ऐसा नहीं है कि px py ही लेना है, px pz भी ले सकते हैं, py pz भी ले सकते हैं, एनी 2 आउट ऑफ 3। तो इफ वी टेक देन वी विल गेट हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। क्योंकि इसमें 3 हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स ले रहे हैं, सो देयर विल बी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दैट इज sp2 sp2 sp2, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे रहेगा। लेकिन इसको अलग अलग न्यूक्लियस में रखा है। अगर ये तीनों का एक ही न्यूक्लियस रहेगा, तीनों का अगर न्यूक्लियस सेम होगा, तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, ओके। ये 3 एक्सिस में लिया है, एक्स वाई और जेड एक्सिस में। ये शायद थोड़ा गलत कर दिया है, ये ऐसे दिखेगा, नीचे दिख रहा है, तो ये ऐसे दिखेगा। ये 3 एक्सिस में sp2 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 एक ट्राइगोनल प्लानर होगा। इसका जो शेप होगा, ये ट्राइगोनल प्लानर शेप होगा, हाँ सर। सही है। अच्छा सर, मतलब देखिए तीन ही देखिए ये दो लोग एक ही प्लेन में डायरेक्शन होगा। में देखिए 2 लोब्स है। सर ट्रायगोनल प्लानर मतलब सर तीनों लोब्स क्या एक ही प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में तो तीनों लोब्स सर है। ये पूछ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई भी एक प्लेन में रहेगा, एक्स वाई प्लेन, नहीं तो वाई जेड, नहीं तो जेड एक्स, कोई भी एक प्लेन सर में हम और तीनों जैसे लोग को देखिए रख यहाँ सकते हैं। पे जैसे जो एक्स डायरेक्शन है उसमें 2 लोब है और वाई में 1 है, तो अगर हम वाई में 2 और जेड में 1 बनाए तो वो गलत है। ये डायग्राम गलत किया है इसको। ये तीन कोई एक्सिस में नहीं आ सकता है। एक्सिस तो 90 डिग्री में होता है ना, यहाँ पे तो 120 ओ डिग्री हो अच्छा, गया ना, हाँ वही, मतलब कोई एक्सिस में ही नहीं होगा। एक्सिस में नहीं होगा, ये डायग्राम सही नहीं है। अच्छा, समझ गए। तो ये 3 जो लोब होगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका टेल यहाँ पे कर लेते हैं, ये टेल कर लेते हैं, ये छोटा टेल कर लेते हैं। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लानर होगा और बॉन्ड एंगल 120 में रहेगा और ये एक प्लेन में आएगा। ये इसका ज्योमेट्री ऐसे रहने से मोस्ट स्टेबल हो रहा है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस ज्योमेट्री में रहने से मोस्ट स्टेबल हो रहा है, तो इसलिए ये ज्योमेट्री ऐसे ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें भी तो वो छोटा छोटा रहेगा ना। हाँ, छोटा छोटा लिखने से चलेगा, नहीं लिखने से भी अच्छा। चलेगा। तो इसका एग्जाम्पल भी बोरोन ट्राइफ्लोराइड हम लोग कर चुके हैं, इसका एग्जाम्पल हो चुका है BCl3 BF3। तो ये एग्जाम्पल फिर मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखो, बोरोन ट्राइक्लोराइड का मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, एक S 3 px py pz, ये तीनों को मिक्स कर देंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहेगा वो कैसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा। ये एक्सिस का ऊपर नहीं है, इन बिटवीन एक्सिस है, ये भी इन बिटवीन एक्सिस है, ये भी इन बिटवीन एक्सिस है। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बन रहा है, उसको ओवरऑल अगर रखेंगे एक टेट्राहेड्रल शेप में रहेगा। टेट्राहेड्रल शेप को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और एक ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टेट्राहेड्रल शेप में आएगा, ये इसको ऐसे ले लिए, एक टेट्राहेड्रल इमेजिन करो, टेट्राहेड्रल जो डायमंड का स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल। डायमंड को हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना। सर यहाँ पे भी वो छोटा वाला सब छोड़ सकते हैं ना, ये तो
कंप्लीट हो गया। हाँ, छोटा वाला छोड़ सकते ज्यादा हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बुक्स में नहीं देता है, कुछ बुक्स में देता है लेकिन। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें sp3 लिख दो। और इसका टेट्राहेड्रल शेप होगा, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट एग्जैक्ट होता है। अप्रोक्सीमेटली इसको लिख दो, 109.5 डिग्री भी लिख सकते ठीक हो है सर। अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैंने बता दिया तो ये CH4 का लॉन्ग तो नहीं होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सर ये डायग्राम बनाया हुआ है Pardon? लाइन लाइन करके। हाँ, ये उसको चेंज कर दिया, ये मैंने इसको सर नीचे 4 को ऐसे रखा, लेकिन एक इसको तो रोटेट एक्सिस कर की अलोंग दिख रहा है इसको। सर। हाँ, इसमें कोई एक को एक्सिस में रख सकते हैं, प्लेन बाकी में सब आ एक्सिस गया। में नहीं रहेगा। ये इन बिटवीन एक्सिस रखा है। सर ठीक है? ये नीचे जो 2p करके लाइन बनाया हुआ है, फिर ऊपर की तरफ एरो बनाया हुआ है, ये कौन सा डायग्राम है? ये टेट्राहेड्रन का सर। क्या है? तो ये जो डायग्राम ये ऐसे ही किया है, इन बिटवीन एक्सिस आ रहा, ये ऑन नहीं एक्सिस सर, नहीं आ ये रहा। वाला नहीं सर, इसके नीचे जो वो प्रिंटेड वाला है, ऑर्बिट्स ऑफ एन आइसोलेटेड कार्बन एटम और ऑर्बिट्स ऑफ एन। वो डायग्राम है नॉर्मल, जो बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स की जगह सिर्फ लाइन बनाया हुआ है। हाँ, ये जो बॉक्स है ना, ये वो, हाँ वो क्या है, वो तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो CH4 का तो मैंने कर दिया ना, CH4 फॉर्मेशन तो हो गया, तो वही किया है इसमें। तो CH4 हो गया, CH4 ऐसे करता है। ये एक एग्जांपल लिया, C2H6 का एक लिया है। तो C2H6 में ऐसे होगा, CH3 और CH3। ओके, तो C2H6 में ऐसे करके ये एग्जांपल दिया है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब C2H6 का एक एग्जांपल लिया, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। C2H6 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ? कार्बन, इसका लीव स्ट्रक्चर बनाओ, बना लिए। सर सारे Clear? सिग्मा बॉन्ड है, तो ये इसलिए 4 सबको हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। हाँ, ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब 4 ऑनपेयर इलेक्ट्रॉन, 4 ऑनपेयर इलेक्ट्रॉन, और कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो चारों को चारों sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसलिए ये sp3 हो गया, ये भी sp3 हो गया। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसका शेप कैसा होगा? ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे होगा। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 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 sp3, एक कार्बन sp3 बनाया, या और एक कार्बन भी sp3 बनाया, sp3 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 बनाया, और इसके चारों तरफ 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये मिक्स होगा। हाँ, ये मिक्स नहीं हुआ, ये मिक्स होगा, ये सब पास आ रहे हैं। तो ये मिक्स होने का बाद कैसे दिखेगा, यहाँ पे दिया। तो ये sp3 ओवरलैप हो गया, sp3 ओवरलैप हो गया, तो यहाँ पे सिग्मा sp3 बन रहा है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे sp3 और ये sp3 ओवरलैप हो गया, तो सिग्मा sp3 बन रहा है, ये वाला सिग्मा sp3। क्लियर है? और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये sp3s ओवरलैपिंग हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, sp3s इस तरफ sp3s हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो रहा है, इस साइड में sp3s हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो रहा है, और ये जो कार्बन है, ये लेफ्ट साइड में 3 हाइड्रोजन के साथ sp3s और sp3s ओवरलैप हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। अगर इथेन को हम एक्सरे डिफ्रैक्शन ऐसे कुछ करके उसको देखेंगे कैसे दिखेगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ऐसे इस टाइप का दिखेगा इथेन।
इथेन इस टाइप का दिखेगा, ये स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ठीक है। ये जो छोटा छोटा दिख रहा है, डॉट दिख रहा है, वो न्यूक्लियस है, और ये जो दिख रहा है ये सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। सर लेफ्ट साइड में जेड क्या बनाए हैं आप? सिग्मा सर नहीं नहीं, sp3s, ये वाला कौन सा? ये नहीं नहीं, एक मिनट सर, ये हम ये जेड, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो बताएंगे, इसके नेक्स्ट में आएगा वो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में आएगा। तो sp3 तो क्लियर है, sp3 हाँ, सर। हाइब्रिडाइजेशन। सर sp_d कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो जाएगा? डी तो 5 तरह का ओरिएंटेशन होता है। हाँ देखो, उसके बाद नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। तो sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3d में तो d में तो बहुत सारा ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे? इसमें d में dz² को मिक्स कर सकते हैं, या d में dx² माइनस y² को मिक्स कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है। d का मिक्सिंग में हम लोग dx² को मिक्स कर सकते हैं, या dx² माइनस y² को मिक्स कर सकते हैं, या dz² को मिक्स कर सकते हैं। यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। तो dz² को अगर मिक्स किए तो dz² का शेप ऐसे रहता है, ठीक है। ये z एक्सिस में लाई करता है, और ये जो रिंग है वो xy प्लेन में आता है, ठीक है। तो dz² का शेप ऐसा है। अगर dz² को मिक्स करेंगे तो ये मिक्स होने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये मिक्स करने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम क्या है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। सर एक बार और बोल दीजिए, ठीक से समझ नहीं आया। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। हाँ हाँ, तो मिक्स करने के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि sp का 3 हो रहा है, d का 1 हो रहा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जो शेप होगा ये स्पेस में ऐसे रहेगा जैसे कि मैक्सिमम स्टेबल हो, मिनिमम रिपल्सन हो, तो वो एक शेप देगा। वो शेप का नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मतलब क्या है? मतलब ये एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल का ऊपर और नीचे एक एक्सिस है। तो नीचे जो ट्राइंगल हो गया, ये जो नीचे ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल एक प्लेन है। ये जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल का ऊपर एक पिरामिड है। ये नीचे देखो एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है। मैं और कोई दूसरा कलर लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ। तो ये देखो एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। तो ये तीन ऑर्बिटल को ज्वाइन करने से एक ट्राइंगल आएगा। और ऊपर देखो और एक ऑर्बिटल जो आया उसको अगर ज्वाइन करेंगे एक पिरामिड जैसे शेप आ रहा कि नहीं? देखो ये देखो, जो मैंने कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में ड्रॉ किया, ये देखो एक पिरामिड आ रहा है कि नहीं? पिरामिड बोलो। तो ये जो शेप बना रहा है, ये शेप का नाम क्या होगा? ये एक ट्राइंगल है और ऊपर को ज्वाइन करने से एक पिरामिड आ रहा है। और अगर हम नीचे को ज्वाइन करेंगे, इसको अगर हम नीचे की ओर लेंगे तो ये और एक पिरामिड आएगा। वो पिरामिड कैसे दिखेगा? वो ऐसे ऐसे कर लो, ओके। तो ये इसको ज्वाइन कर लो, ये नीचे भी एक पिरामिड जैसे दिखेगा। जैसे ऊपर एक पिरामिड दिख रहा है, नीचे भी एक पिरामिड जैसे आएगा। मतलब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दो पिरामिड आ रहा है, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड। देखो ऊपर एक पिरामिड ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, हो गया। नीचे एक पिरामिड आएगा ऐसे ऐसे और ऐसे ज्वाइन करने से, तो ये नीचे एक पिरामिड आ रहा, ऊपर एक पिरामिड आ रहा।
तो ये ट्राइंगल के नीचे एक पिरामिड आ रहा, ऊपर एक पिरामिड आ रहा, तो इसलिए इसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इज दैट क्लियर? सर ये शेप आया कैसे, ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना, मतलब ये जैसा दिख रहा है ऑर्बिटल्स। मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए। ये 5 ऑर्बिटल होगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए ये इस टाइप का शेप करने से मिनिमम रिपल्सन होगा, तो इसीलिए ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जा रहा है। और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो ग्रीन कलर दिखाया, ओके, यहाँ पे जो ग्रीन कलर दिखाया वो ग्रीन कलर ऑर्बिटल है, और बीच में जो यहाँ पे ब्रिक रेड कलर दिखाया वो न्यूक्लियस है। 1 2 3 4 5, ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये एक शेप इस टाइप का कुछ शेप दिखा रहा, इस टाइप का दिखा रहा या इस टाइप का दिखा रहा, तो ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो d² लेने से ट्राइगोनल बाइपिरामिड आएगा, क्योंकि इसका एक एक्सिस में sp3d लाई कर रहा है। सर अगर हम dx² माइनस y² का हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो भी यही शेप मिलेगा? नहीं, अगर dx² माइनस y² लेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो, अगर s p x y z एक्सिस का, अगर dx² माइनस y² लेंगे, dx² माइनस y² क्या करता है, ये ऑन 2 एक्सिस रहता है, ये x और y एक्सिस में रहता है। dz² क्या करता है, ये एक ही एक्सिस में रहता है, ये एक ही एक्सिस में रहता है, ये z एक्सिस में रहता है। तो dx² माइनस y² क्या करता है, ये 2 एक्सिस में रहता है। तो ये 2 एक्सिस में रहने से इसका जो शेप आएगा, इस तीनों को, ये पांचों को मिक्स करने से ये शेप ऐसे देगा, ऐसे, मतलब एक स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर पिरामिड, एक इस तरफ आएगा, स्क्वायर पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर पिरामिडल। इसको ज्वाइन करो। सर f का भी होता है क्या हाइब्रिडाइजेशन? नहीं, वो सिलेबस में नहीं है एफ का, अभी तक हम लोग एफ का नहीं किए। ये 5 ऑर्बिटल है, तो 5 जो ऑर्बिटल है उसको हम स्क्वायर पिरामिडल में रख दिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ऊपर एक ले लिए। ये सबको ज्वाइन करने से एक स्क्वायर पिरामिड जैसे दिख रहा, तो इसी ये होगा स्क्वायर पिरामिडल, ये होगा स्क्वायर पिरामिडल। इज दैट क्लियर? तो स्क्वायर पिरामिडल x² माइनस y² को लेने से क्यों आ रहा, क्योंकि x² माइनस y² 2 एक्सिस में है। तो ये जो पिरामिड है, स्क्वायर जो है, स्क्वायर को हम लोग 2 एक्सिस में रख सकते हैं। ये एक एक्सिस में रखते हैं, ये 2 एक्सिस में रखते हैं, y एक्सिस में रखते हैं, दोनों 90 डिग्री है ना। ये 2 एक्सिस में आ रहा, लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 2 एक्सिस में नहीं आ रहा है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे आया, तो ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, तो ये एक ही एक्सिस में आया था, ऐसे कर। ये ट्राइगोनल, ये एक ही एक्सिस में आ रहा, तो ये एक ही एक्सिस में आ रहा है, मतलब जो डी एक ही एक्सिस में रहता है उसको लेंगे तभी ये आएगा। और ये 2 एक्सिस में आ रहा है, मतलब ये उसी डी लेंगे जो 2 एक्सिस में रहता है, तभी ये आएगा। नहीं सर तो वो dxy dy वो सब के लिए सिर्फ ये? नहीं, वो सब नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हाइब्रिडाइजेशन में वो लोग करता ही नहीं, क्योंकि नहीं, क्योंकि इसमें 2 एक्सिस का झंझट है, 2 एक्सिस में आना है।
इसमें ए वन एक्सिस में आना है, लेकिन ये क्या है, डी एक्स वाई डी वाई जेड जी जेड एक्स, ये क्या है, एलोंग एक्सिस रहता है, उसका शेप क्या है, विद इन एक्सिस रहता है, हाँ नॉट ऑन एक्सिस। तो विद इन एक्सिस, ये सब ऑन एक्सिस में आने के लिए, इस टाइप का शेप बनने के लिए, ये सब लेने से नहीं होगा, ये सब लेने से इस टाइप का शेप नहीं आएगा, तो इसलिए ये सब पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन। सर हम लोग कैसे समझेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हाइब्रिडाइजेशन करें कि डी जेड स्क्वायर का? हाँ, वो उस चीज के लिए वो जो मॉलिक्यूल का शेप को लेके कर सकते हैं। देखना है, अगर जो मॉलिक्यूल हमारा ये शेप दे रहा है, स्क्वायर प्लानर शेप दे रहा है, मतलब समझ जाओ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया है। जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देगा, मतलब समझ लो डी जेड स्क्वायर आया है, बस। मॉलिक्यूल कौन सा शेप कर रहा है वो अगर देगा तभी हम लोग बता सकते हैं, काउंट नहीं करते तो हम ये लोग डी जेड शेप स्क्वायर, याद करना होगा ना। हाँ कुछ याद करना है, कुछ कॉन्सेप्ट से करना है, एग्जाम में हिंट दे देगा क्वेश्चन में। सर तो ये एसपीटी हाइब्रिडेशन सर ये डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से क्यों होता है? क्योंकि ये दो ही शेप आता है, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगा, एक स्क्वायर प्लानर आता है। जब स्क्वायर प्लानर आता है तो उसमें दो एक्सिस रहता है, स्क्वायर प्लानर में दो एक्सिस है, टू एक्सिस है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स वाई वाई जेड डी जेड एक्स लेंगे, उसमें तो कोई भी एक्सिस में नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा तो इस टाइप का शेप कैसे बनेगा, बन ही नहीं सकता। तो दो एक्सिस रहने वाला जो है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसको लेंगे तभी ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आएगा, तो इसीलिए उसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पार्टिसिपेट करता है। और डी जेड स्क्वायर एक एक्सिस में रहता है, एक्सियल है, तो ये जो शेप आएगा उसमें तो कोई एक को एक्सिस में रहना पड़ेगा पूरा। देखो ये आगे पीछे करके एक्सिस में है, तो इसको एक्सिस में रख रहे हैं, तो डी जेड स्क्वायर लेंगे तभी होगा, डी एक्स वाई वाई जेड डी जेड एक्स में नहीं हो सकता है, डी क्योंकि वो एक्स स्क्वायर वाई विद इन स्क्वायर एक्सिस आता है। से ये शेप कैसा होगा सर, स्क्वायर प्लानर? हाँ स्क्वायर प्लानर होगा। अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसके प्लेस में ले लेंगे तो स्क्वायर प्लानर होगा, जो मैं व्हाइट पेज में बताया। तो प्लेनर कैसे, ये तो ठीक है, पिरामिड स्ट्रक्चर आ रहा है, स्क्वायर पिरामिडल। सॉरी स्क्वायर पिरामिडल, उसमें व्हाइट पेज में मैंने क्या लिखा, स्क्वायर पिरामिडल, हाँ सही है, मैंने सही लिखा, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो ये नोट कर लिए। हाँ सर। तो इसका वीडियो बन रहा है, मैं भेज दूंगा, बाद में भी देख सकते हो अगर चाहोगे तो। फिर नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख लेंगे बाद में, कौन सा मॉलिक्यूल इस टाइप का करता है, कैसे करता है, एग्जाम्पल बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे। आज मैं जितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है सब बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, sp3d2 में कौन सा डी पार्टिसिपेट करेगा बोलो? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। हाँ एस जो एक्सिस का ऊपर है वही पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडेशन में, जो एक्सिस का अंदर है। हाँ इसका लॉजिक है ना, क्योंकि ये मिक्स होने के बाद जो शेप देता है वो शेप में 3 एक्सिस आता है, एक होगा एक्स एक्सिस, एक होगा वाई एक्सिस, एक होगा जेड एक्सिस। पता करना मतलब वही डी लेंगे जो ऑन एक्सिस रहेगा, अगर ऑन एक्सिस रहेगा उसी एक्सिस लेंगे तभी ये शेप आ सकता है, नहीं तो ये शेप नहीं आ सकता। पता करना होगा तो। हाँ शेप देख के बताएंगे। तो इसीलिए ये दोनों ही पार्टिसिपेट करता है, कभी भी डी एक्स वाई वाई जेड डी जेड एक्स ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, याद रखो। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में ये दोनों ही पार्टिसिपेट करता है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ सर। ठीक है, तो ये 6
हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल अगर मिक्स हो गया तो ये 6 हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल मिक्स होने से क्या हो रहा है हम लोग देखते हैं, वो कैसे शेप देता है देखते हैं। ये सब शेप इस डायग्राम में दिया है, ये देखो, ये देखने से समझ में आ जाएगा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d2 sp3d2 सब दे दिया, ये 6 को 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब एक ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक स्क्वायर प्लानर बनाया और एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग भी बोल सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसका 2 नाम है, एक स्क्वायर बाई पिरामिडल, दूसरा है ऑक्टाहेड्रल। तो ये स्क्वायर बाई पिरामिडल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये स्क्वायर में आता है, ऊपर एक पिरामिड बना सकते हैं, नीचे भी एक पिरामिड बना सकते हैं, ऐसे करके बना लो, एक स्क्वायर ले लो, तो इसको ज्वाइन करो, पिरामिड आ जाएगा। ओके, तो इसको ऐसे ऐसे करके ज्वाइन कर लो, एक पिरामिड आएगा कि नहीं, देखो आ रहा है कि नहीं, एक पिरामिड आ रहा है। तो इधर से एक पिरामिड आ रहा है, स्क्वायर जिसका बेस स्क्वायर है, स्क्वायर पिरामिड, नीचे भी स्क्वायर पिरामिड आएगा, तो स्क्वायर पिरामिडल हो गया। या इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। क्यों ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे? क्योंकि इसमें 8 फेसेस है, उसका फेसेस 8 है। कैसे 8 है? देखो ये साइड वाला ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया, ये एक है येलो कलर, ये साइड वाला ले लिया और एक डार्क येलो ले लिया, 2 हो गया फेस, और फ्रंट में एक फेस ले लिया, ये ले लिया पर्पल कलर, इसका पीछे एक होगा फेस, वो दिख नहीं रहा है, तो 1 2 3 4, ऊपर 4 हो रहा है, ऐसे ही नीचे 4 आएगा, तो टोटल हाउ मेनी फेसेस विल कम? 1 2 3 8 फेसेस, 8 फेसेस। तो इसका 8 फेसेस है, इसलिए इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। तो ये भी उसका अलग डायग्राम है, ये एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम है, ये एक है, इसका नीचे भी और एक रहेगा, उसको हम लोग एग्जैक्टली नहीं कर सकते। मैं ट्राई करता हूँ फिर से। ऐसे करके आएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। हाँ सर। तो समझ में आया? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इस टाइप का रहेगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगा, 8 फेसेस होगा, स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोल सकते हैं, इसमें dx² - y² और dz² मिक्स होगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन देखो। तो ये कैसे पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा? हाँ, ये क्या हुआ? sp3d3 में इसमें कौन सा d जाएगा? इसमें तीन d जाएगा, एक तो dx² - y² तो जाना ही है, dz² जाना है, क्योंकि वो सब एक्सिस का ऊपर आता है, और जो बॉन्ड बनेगा एक्सिस का ऊपर फर्स्ट चॉइस रहता है। तो ये दोनों ले लिए, और थर्ड d कौन सा लेंगे? थर्ड d हम लोग लेंगे dxy लेंगे। क्यों dyz zx नहीं लेंगे? क्योंकि dxy का जो प्रॉपर्टी है dx² - y² के साथ मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है? देखो dx² - y² क्या करता है, x और y एक्सिस का ऊपर आता है, और dxy क्या करता है, x और y प्लेन में आता है, xy प्लेन में आता है। ये xy प्लेन x एक्सिस y एक्सिस का ऊपर जो है, इसका प्रॉपर्टी इसका क्लोज होगा, सिमिलर होगा। तो अगर दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर है, एनर्जी सिमिलर है, नियरली सेम है, और एनर्जी तो मैचिंग अच्छा से होगा ना। देखो कोई 2 स्टूडेंट है, नेचर दोनों का अच्छा है, दोनों का नेचर सिमिलर है,
तो नेचर सिमिलर होने से दोस्ती जल्दी बनेगा, ज्यादा दिन तक रहेगा। तो नेचर अगर ऑपोजिट है, एक गुस्से वाला लड़का है, एक शांत वाला लड़का है, तो उनके बीच में बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग नहीं होगा। दोनों शांत बच्चे हैं, दोनों कूल माइंडेड है, ओके, कूल माइंडेड स्टूडेंट, तो उनका बीच में फ्रेंडशिप अच्छा होगा। तो यहाँ पे dx² माइनस वाई स्क्वायर लेने से मिक्सिंग अच्छा से होता है, बेस्ट मिक्सिंग होगा। तो since dxy is matching with dx² minus y square, it is having same plane, xy plane. So that's why whenever d3 will come, sp3 d3, pxy py pzx mix होगा और dx² minus y square dz² and dxy will mix. Clear? सर डी जेड स्क्वायर एक्सिस पे लाइक dz² जो है वो z एक्सिस में लाई सर, करता है। तब उसको क्यों ले रहे हैं? उसको लेना है ना, वो एक्सिस का ऊपर है, वो तो फर्स्ट चॉइस है। हम लोग ऊपर देखें ना, जो एक्सिस का ऊपर रहेगा वो जल्दी मिक्स होगा और मिक्स करने से जो शेप आएगा, फाइनल शेप, उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। तो इसीलिए हम लोग उसको लेंगे। सर फिर dxy को ठीक है। पिछले एग्जांपल में क्यों नहीं लिया sp3d2 में? क्योंकि वो एक्सिस में नहीं था ना। ओ, हमारा डी सबसेल में दो सबसेल एक्सिस में आता है और 3 सबसेल अलोंग एक्सिस आता है। तो हम लोग अगर d2 ले रहे हैं, sp3 d2 ले रहे हैं, तो फर्स्ट चॉइस z² x² माइनस वाई स्क्वायर ही होगा ना। अगर थर्ड चॉइस मिलेगा तब dxy मिलेगा, dxy आएगा। फोर्थ चॉइस नहीं है, sp3 d4 नहीं होता है, sp3 d4 होता नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही होगा, ये तीनों। सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है तो और इसका जो सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है तो सर sp3d4 नहीं होता, sp3 d3 तक होता है। तो sp3 d3 का शेप क्या होगा? शेप होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मतलब एक प्लेन में पेंटागन आएगा और ऊपर एक एक्सिस, नीचे एक एक्सिस, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। अच्छा सर। ठीक है, तो एक पेंटागन होगा, ऊपर एक, नीचे एक, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इस टाइप का कुछ दिखेगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सर इससे पहले वाला में बॉन्ड एंगल नहीं था sp3d में, बता दीजिए। sp3d2 में बॉन्ड एंगल सबका 90 होगा। देखो ये जो बॉन्ड है ना, इसको हम दो टाइप का बॉन्ड बोलते हैं, एक एक्सियल, एक इक्वेटोरियल। यहाँ पे ले लेते हैं, sp3d का ले लेते हैं, ठीक है, sp3d का ले लेते हैं। sp3d में ये जो बॉन्ड रहेगा, ये 3 बॉन्ड रहेगा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। ये 3 बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल। और ऊपर नीचे जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं एक्सियल। ठीक है, इसका एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड है। और इसका बॉन्ड एंगल अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, इक्वेटोरियल एक्सियल का बॉन्ड एंगल कितना है और इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल कितना है। एक्सियल का बॉन्ड एंगल हमेशा 180 होता है। सर एक्सियल तो इक्वेटोरियल से ज्यादा होता है ना, लेंथ ज्यादा होता है। हाँ, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, रिपल्शन ज्यादा होता तो है। ये दोनों का बॉन्ड एंगल बोलो। ने दो। हाँ बोलो। 90। अभी इक्वेटोरियल और एक्सियल का बॉन्ड एंगल कितना होगा बोलो। 90 डिग्री 90 यस, क्योंकि एक प्लेन में आएगा, ये उसका इंटरसेक्टिंग प्लेन। और इक्वेटोरियल कितना होगा, ये इक्वेटोरियल ये वाला एंगल कितना होगा, 120 होगा। सर ठीक है, सकते हैं 120 180 होगा, मतलब 109.5 ऐसा कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये 3 है, 3 जो है ऐसा रहेगा ना, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप करेगा। अच्छा। 3 जो रहेगा,
तो ये तीनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो टोटल 360/3 हो जाएगा। हाँ सर समझ। ऐसे करके। और एक्सियल ऊपर नीचे रहेगा तो उनके बीच में एंगल 180 ही होगा। और इसका ऊपर नीचे अगर एक्सिस पास करेंगे वो लाइन जो है इसके साथ 90 डिग्री करेगा, इसीलिए ये 90 हो गया। अब मान लो हम ऑक्टाहेड्रल शेप ले रहे। ऑक्टाहेड्रल शेप में क्या हो रहा है, तो एक्सियल इक्वेटोरियल ये हमारा हो गया इक्वेटोरियल, ये सब इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ऊपर नीचे जो है एक्सियल है, इसमें इक्वेटोरियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल कितना एंगल होगा इक्वेटोरियल बोलो? एक्सियल होगा 90 डिग्री, तो दोनों ही 90 डिग्री होगा। हाँ सर 90 डिग्री एक्सियल 180 डिग्री होगा। हाँ एक्सियल एक्सियल 90 इक्वेटोरियल भी 90 होगा। तो इज दैट क्लियर? इज शेप्स सर आर अगर क्लियर? इसमें लोन पेयर आ जाए तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा ना? हाँ, लोन पेयर आने से चेंज होगा। ये रेगुलर ज्योमेट्री है, भी बदल जाता है। वो हाँ वो नेक्स्ट थ्योरी में आएगा, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो नेक्स्ट बीएससी पेयर थ्योरी में वो सब आएगा। हाँ, अभी इसमें देखते हैं बॉन्ड एंगल कितना होगा। इसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल कितना होगा, एक्सियल इक्वेटोरियल कितना होगा। एक्सियल तो 180 होगा। ये इसमें देखो ये पेंटागन है, तो पेंटागन 22 डिग्री होगा। 5 होगा सर। और सर इक्वेटर ये पेंटागन है, और एक्सियल के लिए तो वो तो 180 90 डिग्री होगा। इक्वेटोरियल एक्सियल तो 90 इक्वेटोरियल एक्सियल तो बाई 2 हो गया, माने 360/5 हो रहा है, क्योंकि 5 एंगल है ना। तो पेंटागोनल हो रहा है तो 360/5 इक्वल होना चाहिए। तो ये 72 होगा। इक्वेटोरियल 72 डिग्री होगा। एक्सियल क्या करेगा, उसका वर्टिकली इंटरसेक्ट करेगा, तो एक्सियल इक्वेटोरियल 90 होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? बॉन्ड एंगल क्लियर है? यस सर। D2 का sp3d2 में सब 90 हो रहा है ना सर। उसका शेप हम लिखे नहीं, उसका शेप क्या होगा सर? 72 डिग्री लास्ट वाला और एक बार दिखाएंगे। इसका 72 डिग्री में शेप होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और ये ऐसे दिख रहा है। ये 72 होगा, ये 72 होगा, ये 72 होगा, ये 72 होगा, ये 72 होगा। सबको ऐड कर दो, 360 आ रहा। हाँ सर। सर मेरा कुछ डाउट था। हाँ, एक बुक में लिखा था कि बॉन्ड लेंथ इज अफेक्टेड बाय स्टेरिक इफेक्ट। सर ये स्टेरिक इफेक्ट क्या है? वो आएगा बाद में। वो एक आगे का है, ड्रागोस रूल, बैंड्स रूल, ये सब है, उसमें सब आएगा। तो स्टेरिक इफेक्ट जो रिपल्सन होगा ना, 3D स्पेस में जो रिपल्सन होता है ना, उसको स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो कितना रूल है टोटल? हम यही केमिस्ट्री रूल में से तो ज्यादा बहुत तो रूल है। एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन निकल आ रहा है। हाँ। सर आपने जो वो डेल्टा बॉन्ड वाला एक मतलब लिख के भेजा था ना, तो उसमें जो एग्जांपल दिया था वहां पे नीचे लिखा है CO is a strong ligand LIGAND, so it will pair up the unpaired electron in Mn। से ligand है सर? हाँ, वो क्या करता है ना, वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उसको फोर्सिबली पेयर कर देता है। वो Forcibly स्ट्रॉन्ग कैसे लिगैंड pair होने करेगा से सर? क्या करेगा, हाँ करता है, क्योंकि उसका जो फील्ड है ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड है CO का, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये होर्न्स रूल को वायलेट कराएगा। ये क्या करेगा, होर्न्स रूल जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, ये क्या करेगा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। क्योंकि जब बॉन्ड बनेगा ना,
वो बॉन्ड बनने का टाइम में ये अपना मैग्नेटिक फील्ड उसको दे के डी का इलेक्ट्रॉन को पीछे ढकेलेगा और पीछे ढकल के जो जितना अनपेयर्ड है उसमें से जितना पेयरिंग हो सकता है मैक्सिमम उतना पेयरिंग कर देगा। तो वो एक थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। ये 12th क्लास में आएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, हाँ, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोल के है, 12th क्लास का लास्ट चैप्टर में है ये। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th क्लास में सर वो पढ़ोगे। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कलर क्यों शो करता है उसका प्रूफ है ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। हाँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में उसको अच्छा से कलर एक्सप्लेन क्यों किया शो करता है। एक्सप्लेन किया है। हाँ, कलर क्यों करता है एक्सप्लेन किया है। तो सब लोग एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन प्रूव एक्सपेरिमेंट से होता है, सब अपना अपना थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। ये इसके वजह से होता है, वो कुछ एजम्पशन लेते हैं उसके थ्रू वो एक्सप्लेन करते हैं। जिसका एक्सप्लेनेशन स्ट्रांग होगा उस थ्योरी को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो सही है। फिर नेक्स्ट कल हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन, वहीं से स्टार्ट करेंगे। सर ये एनोटेशंस वाला पीडीएफ भेज देंगे ना। हाँ हाँ हाँ, ये आज भेजना है कि कल सर, वर्क होने के बाद पूरा भेजना हो है? जाने के बाद भेज देना। कल पूरा हो जाने के बाद भी ठीक है ठीक है, कल और कुछ पढ़ा लेंगे फिर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भेज देंगे। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल।